اور ابھی بتائیں کہ شریف خاندان کے خلاف 3 نیب ریفرنسز کی سماعت جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر احتساب عدالت میں پیش ہو گئے۔ ثقافت کی جانب سے 2 گواہوں کو پیش کیا گیا جن کے بیانات ابھی قلم بند کیے جا رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں بیانات۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر مقدمے کی سماعت کر رہی ہیں۔ آج عدالت میں سماعت کے موقع پر کیا ہوا، بات کریں گے اسی پر ریحان دشتی سے۔ ریحان، اپڈیٹ کیجئے گا، ابھی سماعت کہاں تک پہنچی، آج کارروائی میں کیا ہوا؟ جی بالکل، شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز کیس کی سماعت جاری ہے اور اس وقت ضمنی ریفرنسز میں دلائل مکمل ہونے کے بعد جج محمد بشیر نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور خواجہ عارف نے دلائل دیا اور خواجہ عارف نے اپنے دلائل میں کہا کہ جو ضمنی ریفرنس دائر کر دی گئی ہے، کیا اس سے پہلے اس ریفرنس کے حوالے سے کوئی پہلے ریفرنس میں کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کے پاس کچھ مواد نہیں تھا، اس کے بعد ضمنی ریفرنس دائر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت دونوں جو نیب پروسیکیوٹر اور خواجہ عارف کی جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد اس وقت فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور خواجہ عارف نے اپنے دلائل میں کہا کہ جو ضمنی ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے تو کیا پہلے والی ریفرنس میں ثبوت نہ ہونے کے بعد یہ ضمنی ریفرنس دائر کر دیا گیا، اور خواجہ عارف نے دلائل میں کہا کہ یا پھر ریفرنس ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ خواجہ عارف کے دلائل نے کہا کہ اگر پہلے اور ضمنی ریفرنس ایک ہی ہیں تو اب اس کو دائر کرنے کا کیا مقصد تھا، اور خواجہ عارف نے دلائل دی کہ کیا نیب نے یہ ریفرنسز دائر کرنے سے پہلے خود پڑھے ہیں، تو خواجہ عارف نے کہا کہ آپ نے عدالت اور ڈیفنس کو مطمئن کرنا ہے یا ریفرنس مختلف ہے۔ خواجہ عارف نے اس پر اعتراض کیا اور دوسری جانب نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے اور قانون ضمنی ریفرنس کا دائر کرنے کا منع نہیں کرتا، نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیے گئے اور نیب پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ نیب کے اختیار میں ہے کہ اگر تفتیش کے دوران نئے ثبوت ملے تو ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے، اور تفتیش کے دوران نئے دستاویزات اور ثبوت کی بنیاد پر ضمنی ریفرنس دائر کر دی گئی ہے، یہ نیب کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اور خواجہ عارف نے دلائل دیا کہ سپریم کورٹ کے 28 جولائی 2017 کے فیصلے پر 14 کے مطابق نیب نے پہلے 6 ہفتوں میں ریفرنس دائر کرنے تھے اور 6 ہفتوں میں دائر کرنے کے بعد 6 مہینے میں جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہونا تھا۔ اس وقت دونوں جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ریحان دشتی ہمیں اپڈیٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ اب تک جو کیس کے اندر پیشیاں ہوئی ہیں اس میں نواز شریف 14 بار پیش ہو چکے ہیں، یہ 15ویں پیشی ہے، جبکہ مریم نواز کی آج 17ویں اور محمد صفدر کی آج یہ 19ویں پیشی۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن فلیٹس، العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ، یہ وہ 3 ریفرنسز ہیں جو JIT کی جانب سے پرپوز کیے گئے تھے، سفارشات کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر پیناما کیس کے سلسلے میں کہ ان ریفرنسز کو کھولا جائے، اور انہی کے احکامات دیے گئے۔ آج آپ کو بتائیں کہ ان ریفرنسز کے ساتھ ساتھ ضمنی ریفرنس فائل کیا گیا اور اسی پر جرا جاری رہی۔ ریحان یہ بتائے گا کہ آج جو 2 بیانات قلم بند کرائے جا رہے ہیں گواہوں کی جانب سے، وہ کس ریفرنس میں پیش کی گئے ہیں؟ جی بالکل، اب اس سے پہلے اب سماعت شروع ہوئی تو ضمنی ریفرنس دائر کری گئی تھی اور ضمنی ریفرنس کے حوالے سے بحث ہوئی اور احتساب عدالت میں آج ضمنی ریفرنس کی درخواست تھی، نیب کی جانب سے اس پہ بحث مکمل ہوئی، دونوں جانب سے جو دلائل مکمل ہوئے، خواجہ عارف نے بھی دلائل دیا اور اس کی دوسری جانب جو نیب پروسیکیوٹر ڈپٹی نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے بھی دلائل دیا اور دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ لیکن دوسری جانب 2 گواہان کو آج طلب کر رکھا ہے، ابھی تک گواہان کے بیان ریکارڈ نہیں کیے جا سکے کیونکہ جو ضمنی ریفرنس درخواست ہے اس میں دلائل دیے گئے اور دلائل مکمل ہو گئے۔ اب کچھ ہی دیر بعد جو گواہان نے جو 2 گواہ کو آج طلب کر رکھا ہے، دونوں گواہان اپنے بیان ریکارڈ کریں گے احتساب عدالت کے سامنے، اور دوسری جانب خواجہ عارف جو وکیل صفائی محمد نواز شریف وکیل گواہان پہ جرا کریں گے۔ جی بالکل، ہمیں اپڈیٹ کریں ہمارے نمائندے ریحان دشتی اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ شریف خاندان کے خلاف 3 ریفرنسز کی سماعت اس وقت جاری ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر احتساب عدالت میں جج محمد بشیر کے روبرو موجود ہیں جہاں بھی مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اپریل 2016 جب پہلی بار پیناما پیپر میں شریف خاندان کا نام آیا، جس کے بعد 1 سال تک تحقیقات جاری رہی، لیکن جولائی 2017 میں عدالت نے فیصلہ سنایا اور یوں JIT کی سفارش کردہ 3 ریفرنسز کی سماعت کا آغاز ہوا نیب عدالت میں، جس کے جج محمد بشیر ہیں۔ ان کیسز میں فلیگ شپ انویسٹمنٹ، العزیزیہ مل اور لندن فلیٹس ہیں، اور ان ریفرنسز کی سماعت
अभी जारी है। आज लंदन फ्लैट्स की 22वीं, अल अजीजिया स्टील मिल की 26वीं और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की 23वीं समाअत है जो कि अभी जारी है। ये भी बताएं कि इससे पहले अदालत के अंदर ये जो अहकाम जो दिए गए थे उसमें कहा गया था कि नैब रेफरेंसेस के ऊपर फैसला 6 माह के अंदर सुनाएं। इस वक्त 6 माह कंप्लीट होने को है। अदालती कार्रवाई भी इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी है। गवाहों के बयान कलम बंद हो रहे हैं। ऐसे में नए ज़िमनी रेफरेंस फाइल किए गए हैं। रेहान बताएगा, अब चूंकि नए ज़िमनी रेफरेंसेस फाइल हुए हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त नए ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दी गई है नैब की जानिब से, और नैब की जानिब से दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो दरख्वास्त दायर कर दी गई है उसमें मजीद जो केस के हवाले से मजीद शवाहिद मिले और मजीद सबूत मिले। सबूत मिलने के बाद ये रेफरेंस दायर कर दी गई है और इस रेफरेंस में मजीद 7 गवाह को तलब करने की इस्तदा की है। और दरख्वास्त दोनों जानिब से अब दलाइल मुकम्मल ख्वाजा आरिफ ने मुकम्मल उसमें जो रेफरेंस की खिलाफ दलाइल दिया और ख्वाजा आरिफ ने उसकी मुखालिफत कर दी। ख्वाजा आरिफ की जानिब से यह दलाइल दिया कि क्या ये रेफरेंस जो पहले दायर की गई थी वो कंप्लीट नहीं थी, क्या नैब की जानिब से किस लिए ये रेफरेंस दायर किया जा रहा है, जो पहले जो गवाहान थे क्या उनके पास कोई सबूत नहीं था, उसके बाद ये रेफरेंस दायर कर दी गया है। लेकिन नैब की प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये दलाइल दिया है कि ये नए रेफरेंस में नए दस्तावेजात हमें मिले, नए सबूत हमें मिल गए। नए सबूत मिलने के बाद ये रेफरेंस दायर कर दी गई है। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद जज मोहम्मद बशीर ने अब इस वक्त फैसला महफूज कर लिया गया है। ज़िमनी रेफरेंस दरख्वास्त पर फैसला महफूज है और आज फैसला सुनाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब 2 गवाहान को आज तलब कर रखा है। दोनों गवाहान के आज बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। साहब अदालत में दोनों गवाहान के अभी तक बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सके क्योंकि जो ज़िमनी रेफरेंस पे इस वक्त दलाइल मुकम्मल हुए हैं। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया है। जी बिल्कुल, रेहान दस्ती हमें अपडेट करें। रेहान आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि नए रेफरेंसेस फाइल किए गए हैं एहतसाब अदालत में। इस वक्त आपको बताएं कि आज जो नए रेफरेंसेस दायर किए गए उसमें ख्वाजा हारिस की जानिब से बहस भी की गई है इन नए दायर किए जाने वाले ज़िमनी रेफरेंसेस के ऊपर, जहां ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि क्या पहले रेफरेंसेस में सबूत न होने के बायस ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि जब केस खत्म होने की जानिब बढ़ा है तो नया रेफरेंस दायर करने का मकसद क्या है। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि हुक्म के मुताबिक नए असासे सामने आने की सूरत में रेफरेंस दायर किया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हुक्म में यह भी शामिल है कि अगर नए सबूत आए तो भी 6 हफ्तों में रेफरेंस दायर करना थे। इस वक्त आपको बताएं कि नैब के वकील की जानिब से जो दलाइल दिए गए उसमें कहा गया कि तफ्तीश के दौरान नई दस्तावेजात और सबूत की बुनियाद पर ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जा सकता है। नैब के वकील ने यह भी कहा कि नैब के इख्तियार में कि अगर तफ्तीश के दौरान नए सबूत मिले तो रेफरेंस दायर कर दिया जाए। कानून ज़िमनी रेफरेंस में दायर करने से मना नहीं करता है, ये नैब के वकील का कहना था। जबकि इसमें ख्वाजा हारिस की जानिब से दलील दी गई कि अगर पहला और ज़िमनी रेफरेंस एक ही है तो फिर अब इसको दायर करने का मकसद क्या है, या फिर ये रेफरेंस रिपीट किया जा रहा है। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि क्या पहले रेफरेंस में सबूत न होने के बायस दूसरा यानी ज़िमनी रेफरेंस फाइल किया जा रहा है। अगर पहला और ज़िमनी रेफरेंस एक ही है तो इसको दायर करने का मकसद क्या है। वो जिरा है जो आज अदालत में हुई है। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि 2 गवाहान जिन्हें आज पेश किया गया उनकी जानिब से बयानात कलम बंद करवाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि आज मुल्ज़िमान की मौजूदगी में 2 गवाह नाफाक अहमद, वक़ार अहमद, जिनके बयानात कलम बंद हो रहे हैं। बयानात कलम बंद होने पर वकला की जानिब से उनके बयानात पर जिरह की जाएगी। आपको बताएं कि नैब की जानिब से लंदन फ्लैट्स के ज़िमनी रेफरेंस पर कार्रवाई के लिए नैब और वकीले सफाई दलाइल भी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रेहान दस्ती। रेहान बताइएगा, तकरीबन एक रेफरेंस में 22वीं, एक में 26वीं और 23वीं समाअत हो रही है। अब तक समाअत पर क्या देखते रहे हैं और आज की समाअत पर क्या मुख्तलिफ नजर आया आपको? जी बिल्कुल, आज के समाअत में जो डेली रूटीन के मुताबिक समाअत होनी थी, लेकिन पिछले समाअत में नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के बाद आज ज़िमनी रेफरेंस पे बहस हुई है। साहब अदालत में और दोनों जानिब से जो वकला थे वकला ने अपने
दलाइल दे दिए और जो ख्वाजा आरिफ ने जो दरखास्त की मुखालिफत में दलाइल दिए और ख्वाजा आरिफ का कहना था कि दलाइल में कहना था कि क्या ये ज़मीनी रेफरेंस दायर किए जा रहे हैं, क्या पहले जो रेफरेंस दायर किए थे वो इनकम्प्लीट थे और नामुकम्मल थे, और जो रेफरेंस में उनको गवाह उनको तलब कर रखा है कि उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं थे कि ये ज़मीनी रेफरेंस दायर करने के लिए नेब ने ये ज़मीनी रेफरेंस दायर कर दी और मजीद गवाह को तलब करने की इस्तदा की है। और इस वक्त जो नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी दलाल दिए गए और नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाल दिए गए कि जो नए कवानीन के मुताबिक जो ज़िमनी रेफरेंस इसलिए दायर किया जाता है कि नए सबूत मिल जाते हैं और नए सबूत मिलने के बाद ये ज़िमनी रेफरेंसेस दायर किया जाता है। जो दलाल सुनने के बाद इस वक्त फैसला महफूज कर लिया गया है साहब अदालत की जानिब से और अब इस्तिगासा के गवाह अपने बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त इस्तिगासा के गवाह आफाक अहमद अपने बयान कलमबंद कर रहे हैं कि फैसला महफूज होने के बाद अब गवाहान के जो बयान है वो रिकॉर्ड करना शुरू हो गए हैं अदालत की जानिब से। इस वक्त इस्तिगासा के गवाह आफाक अहमद अपना बयान कलमबंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त बयानात कलम बंद कराए जा रही हैं गवाहों की जानिब से। इस्तिगासा के गवाह हैं। इस वक्त आपको पता है नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि ज़िमनी रेफरेंस में पहले से आयद इल्ज़ामात से मुतालिक नए शवाहिद शामिल किए गए। ज़िमनी रेफरेंस में कोई नया इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। ये उस सवाल का जवाब है जो कि आज ख्वाजा हारिस की जानिब से किया गया था। इस वक्त आपको बताएं कि अदालत ने ज़िमनी रेफरेंस में 3A का चार्ज ख़त्म नहीं किया है, ये भी कहना था नायब प्रोसिक्यूटर का। इस वक्त आपको बताएं कि हम बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं गवाह आफाक अहमद और वक़ार अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज नवाज शरीफ को 15वीं मरतबा पेश हुए हैं एहतसाब अदालत में। मरियम नवाज 17वीं और मोहम्मद सफदर 19वीं बार। इसी पर बात करेंगे। आफ्ताब चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब बताइएगा आज की पेशी में और गुज़िश्ता पेशियों के अंदर क्या फ़र्क नज़र आता है और अभी केस कितना बाकी रह गया है? 6 माह मुकम्मल होने को है, इख्तितामी मरहले में ये केस मौजूद है। जी आज का जो दिन था या आज की जो समाअत है वो इंतहाई अहमियत की अमल थी, क्योंकि आज ज़िमनी रेफरेंस जो नैब की तरफ से दायर किया गया था उस ज़िमनी रेफरेंस पर अदालत में तवील बहस हुई। नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने इस पर अपने दलाइल दिए। ख्वाजा आरिफ एडवोकेट और अमजद परवेज एडवोकेट जो मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकला हैं उन्होंने भी भरपूर दलाइल दिए और उन्होंने ज़िमनी रेफरेंस की भरपूर मुखालफत की। और चूंकि ज़िमनी रेफरेंस का मामला आज पहली बार इस जितना भी केस चला है उसमें पहली बार आज डिस्कस हुआ और अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है। तो आज की जो समाअत थी वो इस हवाले से इंतहाई अहमियत की अमल थी, चूंकि हमेशा ऐसे केसेस में ज़िमनियाँ आती हैं, यानी अगर FIR हो तो FIR में ज़िमनियाँ आ जाती हैं कि एडिशनल चीज़ें जो दौरान तफ्तीश दौरान तहकीक कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, कुछ नए दस्तावेज़ात हाथ लगते हैं जब तफ्तीशकारों के, तो वो मुतलका अदालतों में जमा कराए जाते हैं और उन पर रेफरेंसेस भी बनते हैं और अगर FIR हो तो ज़िमनियाँ बनती हैं। तो आज का जो ये ज़िमनी रेफरेंस था, अगर आज अदालत उसको उड़ा देती है, यानी ज़िमनी रेफरेंस को कारदम करार देती है और उसे मुस्तरद कर देती है, तो यकीनन ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और दामाद के हक में बात जाएगी और उनके वकला की यकीनन एक फतह होगी। तो बाकी जो मामूल की कार्रवाई थी वो गवाहियाँ हैं। नैब के इस्तिगासा अपने गवाह पेश कर रहा था, तो आज भी 2 गवाह मौजूद हैं, उन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं जिसके बाद केस की समाअत मुकम्मल होगी। तो आज तक जो केस की समाअत चली है उसमें पहली बार ज़िमनी रेफरेंस अदालत में ज़ेर बहस आया और उस पर बड़े गर्मा गर्म बहस हुई और बड़े नैब के प्रोसिक्यूटर उसका दिफा करते रहे, लेकिन ख्वाजा आरिफ एडवोकेट बाज़ाहिर उस पर हावी नजर आए और नैब के प्रोसिक्यूटर की पोजीशन जो है वो कमजोर नजर आई। तो अब जो आइंदा आने वाले वक्त है, जो आने वाली समाअतें हैं वो भी इंतहाई अहमियत की अमल होगी, क्योंकि केस जो है अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। गवाहियाँ मुकम्मल हो रही हैं और सबसे अहम गवाह जो होंगे वो GIT के सरबराह एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया होंगे, जो आखिरी गवाही देंगे और उसके बाद फिर अदालत अपना फैसला लिखना शुरू करेगी और उस पर एक मौका दिया जाएगा मुल्ज़मान के वकला को कि वो इस केस में अगर कुछ इजाफी चीज़ें देना चाहते हैं या इस केस में अगर उनसे कोई दलाइल बाकी रह गए हैं तो वो अपने दलाइल दें ताकि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो अब केस जो है अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। मार्च में इसका फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 6 माह का वक्त दिया गया था जो मार्च में मुकम्मल हो जाएगा। तो 1 माह के दौरान अदालत में ने इस तमाम केस की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल करनी है, जिसके बाद फैसला लिखा जाएगा और फैसला लिखने में भी यकीनन काफ़ी वक्त दरकार होगा। एक तफसीली फैसला होगा
उस JIT की रिपोर्ट की रोशनी में ये रेफरेंसेस बने, जिस JIT ने कई 100 सफात पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई और फिर 3 रेफरेंसेस बने। तो 3 रेफरेंसेस का फैसला यकीनन ये मुल्क की तारीख का इंतहाई अहम केस भी है और बड़ा केस है। तो इस पर पूरी कौम की नजरें हैं और जो एक सियासी जमात है यकीनन उसके जो सरबराहान हैं, उसके जो रहनुमा हैं, उनका मुस्तकबिल भी इस केस से वाबस्ता है। तो इसलिए अब आने वाला जो वक्त है वो इंतहाई अहमियत का अमल है। जितने भी गवाहियां होंगी या जो प्रोसीडिंग है आगे वाली जो रह गई है वो इंतहाई अहम होगी। तो आज अभी जो मामूल की कार्रवाई है वो अभी शुरू हो चुकी है। ज़िमनी रेफरेंस पर जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो चुके हैं और अगर आज इस पर फैसला ना आया ज़िमनी रेफरेंस पर, हो सकता है कल फैसला आ जाए, तो इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। जी ठीक है, जैसे आपने कहा कि इख्तितामी मरहले में शामिल हो चुका है ये केस और मार्च तक इसका फैसला आ जाना है। ये बताएगा कि जो कि ज़िमनी रेफरेंस दिया गया है उसमें सबूत भी लगाए गए हैं, इस सब पर कार्रवाई मजीद कितने दिन जारी रहेगी? और जैसा कि आपने बताया कि मरकजी मुलजिम का मरकजी गवाह को भी बयान रिकॉर्ड कराना होगा, क्या उसके लिए समन जारी हो चुका है? वाजिद ज़िया जो मरकजी गवाह हैं उनको अभी तक समन नहीं किया गया। आज की अगर समाअत मुकम्मल होती है, आज की अगर गवाहियां मुकम्मल होती हैं तो फिर अदालत गवाहों की फहरिस्त देखेगी। अगर कोई गवाह बाकी रह गया है तो उसको तलब किया जाएगा, अगर कोई गवाह बाकी नहीं बचता तो फिर वाजिद ज़िया को तलब किया जाएगा। तो इस हवाले से अदालत ने फैसला करना है कि उनको कब समन करना है। तो बाकी जो ज़िमनी रेफरेंस है, ज़िमनी रेफरेंस पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। नैब ने उसका दिफा किया, मुल्ज़मान के वकील ने उसके खिलाफ बयानात दिए और उसको मुस्तरद करने की इस्तदा की अदालत से। तो अब अदालत ने उस पर भी फैसला देना है। वो फैसला आज भी आ सकता है, वो फैसला कल भी आ सकता है, और किसी भी वर्किंग डे में वो फैसला आ सकता है। और ज्यादातर को यही की जा रही है कि हो सकता है कि आज ही फैसला आया जाए, चूंकि माजी में जितने भी फैसले महफूज किए गए एहतसाब अदालत की तरफ से मुख्तलिफ इन रेफरेंसेस पर यानी मुख्तलिफ एतराज़ात थे, उन पर फैसले महफूज होते रहे और वो फैसले सेम डे आ जाते थे। लेकिन आज चूंकि एक ज़िमनी रेफरेंस एक कानूनी नुक्ता है, नैब को ये हक हासिल है, नैब ऑर्डिनेंस में मौजूद है कि अगर एक रेफरेंस के दौरान, उसकी तफ्तीश के दौरान कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं तो उस पर ज़िमनी रेफरेंस बन जाता है। तो ये बज़ाहिर तो एक कानूनी है, लेकिन क्या उसमें जो चीजें लगाई गई हैं वो अदालत कोई रेपिटेशन तो नहीं हो रही, यानी जो पहले रेफरेंसेस हैं उनमें भी वो चीजें मौजूद हैं और ज़िमनी रेफरेंस भी वो चीजें मौजूद हैं। अगर रेपिटेशन है तो उसमें फिर वो अदालत उसको मुस्तरद कर सकती है। तो आज वाजिद ज़िया को समन करने के हवाले से भी अदालत फिर कोई फैसला करेगी। जी सही, आफ्ताब चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नैब रेफरेंसेस के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। शरीफ फैमिली एहतसाब अदालत के रूबरू मौजूद है इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, जहां 3 रेफरेंसेस की समाअत हो रही है, जिसमें लंदन फ्लैट्स, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट शामिल है। इसके साथ साथ आज नए ज़िमनी रेफरेंसेस भी फाइल किए गए हैं, जिसमें नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया नैब वकील की जानिब से कि इसमें दिए गए पहले से मौजूद रेफरेंसेस के सबूत पेश किए जा रहे हैं। अलबत्ता ये भी आपको बताएं कि आज की समाअत पर इस्तग़ासा के 2 मज़ीद गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया था, जिनकी जानिब से बयान रिकॉर्ड कराया जा रहा है। गवाहान ने आफाक अहमद और वक़ार अहमद के नाम शामिल हैं। गवाहों की जानिब से बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिस पर जरा होगी और उसके बाद आज की समाअत अपने अख्तिताम को पहुंचेगी और आज ही ये फैसला हो जाएगा कि मरकजी गवाह वाजिद ज़िया को कब समन जारी किया जाए, कब उन्हें तलब किया जाएगा। इख्तितामी मरहले में शामिल हो चुका है ये केस। वाज़े कर दें कि जुलाई 2017 को जो फैसला आया उस फैसले के मुताबिक 3 रेफरेंसेस खोले गए थे। नैब अदालत को कहा गया था कि लंदन फ्लैट्स, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के मुतालिक पता लगाएं कि इसकी ओनरशिप किसके पास है, किस तरीके से पैसा बाहर ले जाया गया, लंदन फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स कैसे लगाई गई, इसका पैसा कैसे जद्दा मुंतकिल किया गया। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब जानने के लिए नैब रेफरेंसेस फाइल किए गए थे। आपको ये भी बता दें कि अब नए ज़िमनी रेफरेंस फाइल किए गए हैं और इन तीनों रेफरेंसेस के अंदर मरकजी मुल्जिम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर नामजद हैं, जिनके रूबरू आपको पता आज जो मौजूद हैं जज मोहम्मद बशीर के रूबरू समाअत अभी जारी है। नवाज शरीफ अब तक 14 बार पेश हो चुके हैं, ये 15वीं उनकी पेशी है। मरियम नवाज की 17वीं और मोहम्मद सफदर की 19वीं पेशी है।